نواب حیدر علی خان ایک محلے کے مولوی یا ایک مسجد کے صدر کا نام نہیں ہے. ہندوستان کے شیر میسور ٹیپو سلطان کے باپ کا نام نواب حیدر علی خان. میں نے رام نگر میں کہا تھا آج مینڈک کو مارنے کی طاقت نہیں, نام کے آگے شیر لگا رہے ہو. میرا ٹیپو مینڈک کو مار کر شیر نہیں بنا ہے, شیر کا جبڑا پھاڑ کر شیر میسور بنا. تو اس لیے آج بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان طبقے میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں اتحاد کا پیغام دے رہا ہوں, اپنے اپنے عقائد کو اپنے اپنے گھروں میں رکھ کر کلمے کی بنیاد پر جب تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے گا تب تک ہندوستان میں ہماری کوئی داستان نہیں ہوگی. بے شک ڈاکٹر اقبال نے کہا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. آج ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں, ہم لوگ ندی نالے میں بڑھ چکے ہیں. ہم لوگ جب تک سمندر کی مثال نہیں بنیں گے تب تک ہندوستان میں ہماری پہچان نہیں ہوگی. اتر پردیش کا الیکشن ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ہندوستان کی سرزمین پر اتر پردیش ایک ایسا صوبہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. وہاں ودھان سبھا میں ہم پہنچ کر اپنا حق بھی مان سکتے ہیں اور اپنی بات رکھ بھی سکتے ہیں, لیکن مسلمان طبقے میں بٹا ہوا ہے, مسلمان نام پر بٹا ہوا ہے, مسلمان جماعت کے نام پر بٹا ہوا ہے, مسلمان سلسلے کے نام پر بٹا ہوا ہے. اس لیے نواب حیدر علی خان رحمت اللہ علیہ کے عروس کے موقع پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. جب تک مسلمان سمندر کی مثال نہیں بنے گا تب تک ہندوستان میں ہماری کوئی داستان نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ٹیپو سلطان کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ رہے. ٹیپو سلطان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا. ٹیپو سلطان کا تعلق مسلم قوم سے تھا, لیکن ٹیپو سلطان جب بادشاہ بن کر انصاف کے لیے بیٹھے تھے تو نہ کسی قوم کو دیکھتے تھے نہ کسی مسلمان کو دیکھتے تھے. حق جس جانب ہوتا ٹیپو کا قلم اس کی جانب ہوتا. تو گویا کہ پتہ چل گیا مسلمانوں کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے, ایک سمندر بن کر آنے کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر اقبال کے مطابق ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر, تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر. کہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے آپ کے والد گرامی کے نام کو اگر ہٹا دیا جائے تو وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ آپ بہادر کے لقب سے جو ملقب بھی ہوئے ہیں, آپ کو بہادر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ بہادر تھے, جنگجو تھے. سپہ سالاری میں آپ نے ابتدائی دور سے آپ نے اس کی شروعات کی تھی اور اللہ نے آپ کو آخری وقت تک اسی بہادری کے ساتھ ثابت قدم رکھا. آپ نیک لوگوں میں شمار آپ کا کیا جاتا ہے. حضرت شہید کے متعلق تو بہت بڑے تہجد گزار تھے. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ انصافور تھے, عدل و انصاف ان کا کام تھا کہ ان کی بارگاہ میں چاہے غریب ہو یا امیر ہو, کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, آپ اس کے ساتھ انصاف کرتے تھے. تو آپ کے جب بیٹی کا یہ عالم ہے تو بابا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا ہوگا, کیونکہ جو باپ کی تربیت ہوتی ہے وہی اولاد سیکھا کرتے ہیں. اور روایتوں میں میری نظروں سے یہ بھی گزرا ہے کہ والد کا تھوڑا بہت اثر اولاد پہ ہوا کرتا ہے. تو جب بیٹے اتنے بہادر تو والد کو تو بہادر ہی کہا جاتا, ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا. بس میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ابو صاحب جو اس تقریب کو پیش کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے, اور بزرگوں سے جو سچی محبت کہ یہ اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قائم و دائم رکھے اور ہم تمام کی حاضری کو شرف قبولیت فرمائے. السلام علیکم. بودی کوٹے میں, کرناٹک کے بودی کوٹے میں جنم لے کر ولادت پا کر آپ کے والد فتح علی خان کی وفات کے بعد آپ کے خاندان والوں کی نشو نمائی میں رہ کر تربیت پائی, فن سپاہگیری سیکھا, ننجراج اور دیوراج کے ہمراہ
यहाँ पर रियासत मैसूर के जो है एक सिपा सालार बनकर जो है आपने आगाज किया। क्यों नहीं करते जो अंग्रेजों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अपने ही वतन से गद्दारी की थी। आज उनकी जागीरों को बहाल किया हुआ है, हुकूमतों से सब्सिडी दी जा रही है। जो वतन के लिए शहीद हुआ, जिसकी असल तारीख अंग्रेजों के पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, जर्मनी में है, नासा में है, फ्रांस में है, इटाली में है, अमेरिका में है। दूर दराज से सयाह किसी और को नहीं बल्कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तारीखी मकामात असासात की जियारत करने बेसाख्ता टूट पड़ते ही, जिसका चर्चा सुबह क़यामत तक नहीं मिटेगा। ऐसी अजीम हस्तियों को जो गद्दार थे, गीदड़ है, वही उनकी जो है आहाना तामेज अल्फाज में उनकी तौहीन करते आए कि मोमिन अल्लाह का आईना है। उलमा इकराम तशरीफ फरमाई कि मोमिन अल मोमिन मीरतुर रहमान, मोमिन जो है रहमान। मैसूर शहर के अप्पू भाई, मैं तो बचपने से ही देख रहा हूँ कि वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का उर्स भी मनाते हैं और उनके वालिद हैदर अली खान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह का भी संदल शरीफ मनाते हैं। हमें जो है एक 15-20 साल से मना लेकर आ रहे हैं। हमें जो है इनको देखकर जो है हमारे में भी एक जज्बा पैदा हुआ, हम शुरू किए। आप सब उलमा कराम और मशाइख अज़ाम से सुने, मैं भी वही बोला तो बार बार रिपीट हो जाता हुआ, इसलिए मैं एक बाप और बेटे के ताल्लुक़ से बात करता हूँ, क्योंकि आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है। हज़रत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिरी इल्म नहीं था, लेकिन कामिल बुजुर्ग की तालीम उनके पास थी। इसी की वजह से उन्होंने अपने बेटे को, अपने बच्चों को, अपने बेटे को जो है दुनिया के सारे तालीम से, उलूम से सरफराज कराए और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद को जो है सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिल में डाली गई। जब वो मोहब्बत, जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जब हमारे सीने में भर जाती है, तो हमारा वतन के लिए भी हमारा क़ल्ब, हमारे सीने में मोहब्बत जागृत हो जाती है। इसीलिए हिंदुस्तान के बहा के खातिर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने अपने बच्चों को तक गिरवी रखा। ये वफादार हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले मर्द मुजाहिद है। ये देन जो है सारी दुनिया को, ये देन जो है हज़रत अली की है और उनके पीर और मुर्शिद की है, जो उनके तालीमात से फैज़याब होकर हज़रत हैदर अली खान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे की परवरिश इस तरीके से फरमाई। मैं सामाईन और नाज़रीन और जहाँ तक भी ये मीडिया के ज़रिए बात पहुँच रही है या देख रहे हैं, उसे ही गुजारिश करता हूँ कि हम भी हमारे बच्चों के अंदर इसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अपने वतन की मोहब्बत को जागरूक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में यानी गुंबद शाही में आज उर्स नवाब हैदर अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3:30 बजे संदल शरीफ आया और बाद नमाज असर फ़ातिहा ख़ानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी फ़ातिहा ख़ानी चलती रही और ये हज़रत नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर का 246वां उर्स है। अनकरीब 250 साल होने जा रहे हैं, 4 साल कम हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आपका उर्स मनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जब तक अल्लाह तबारक व तआला औलियाए किराम के आशिकों के दिलों में मोहब्बत रखा है, इन औलियाए किराम की अक़ीदत और मोहब्बत के तहत उनके आरास, उनके उरूसों की तक़रीब मनाते रहेंगे। और इन बुज़ुर्गों के सदक़े से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों से, हर किस्म की तकालीफ़ों से, हर किस्म की मुसीबतों से अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गान दीन के सदक़े में हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अमन व अमान के फ़ैसले फरमाए। अल्लाह ताला हर किस्म की
परेशानियों से, हर किस्म की नज़र बस से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क के जितने भी बाशिंदे हैं अल्लाह ताला सबको मिलजुल करके इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ दुनिया में रह करके और मुल्क के नाम करने के लिए सब मिल करके जो है मुत्तहिद रह करके एक दूसरे की भाईचारगी का सबूत देते हुए अल्लाह ताला सबको चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बुजुर्गान दीन की हाज़री को कबूल फरमाए और इनके फ़यूज़ बरक़ात से अल्लाह ताला हम तमाम को फैज़याब फरमाए। और मैं इनायतुर रहमान रिज़वी खतीब व इमाम मस्जिद अक्सा शाही मस्जिद, इसी मस्जिद का खादिम हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी हाज़री को कबूल फरमा ले, सबको हज़रत नवाब हैदर अली खान बहादुर, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फ़यूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत टीपू सुल्तान। जरा सीधा खड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत हैदर अली ख़ान के आज 246वां उर्स पाक मनाया गया है और हमारे इसके एहतमामी ज़िम्मेदारी को अफरोज़ पाशा उर्फ़ अप्पू भाई साहब ने मीलाद बाग मैसूर से संदल शरीफ को अपने तमाम साथियों के साथ लेकर आए और मीलाद बाग में यहाँ आने से पहले एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मकामी उलमाए किराम और बैरूनी उलमाए किराम मशाइख़ उज़्ज़ाम ने जो है हज़रत हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान की सबान हयात पर रोशनी डाली और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलने की सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से दायरे टीपू गुंबद शाही में आया हुआ हूँ। आप जानते हैं शहर मैसूर में तारीख़ी मिलाद बाग में दोपहर आज एक तारीख़ी जलसा मुनक़िद हुआ। वहाँ पर उलमा अहले सुन्नत और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने हैदर अली ख़ान बहादुर की ज़िंदगी को लेकर कई मुख्तलिफ़ तासरात पेश किए। आज अभी मैं बाद नमाज मगरिब यहाँ गुंबद शाही में हूँ। यहाँ के अभी आसिफ सेठ साहब मौजूद हैं जो वाइस चेयरमैन हैं टीपू वक्फ स्टेट के। इन्होंने भी यहाँ पे बाकायदा फतह ख़्वानी में हिस्सा लिया और चादर भी उड़ाई और यहाँ आसिफ सेठ साहब की मौजूदगी उनसे दो बात करने के लिए मैं चाहूँगा कि वो उनके तासरात बयान करें। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बड़ी खुशी नसीब क्या दिन है, बहुत प्यारा मुक़द्दस दिन है जी कि आज 240 पर 6 जी हज़रत हैदर अली नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स है जी संदोल चढ़ाया गया है। मैं आपके मीडिया के थ्रू सारे कर्नाटक के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज मुक़द्दस दिन में मैं शामिल हुआ, दरूद सलाम पेश किया, चादर पेश किया। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से मैं हज़रत नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर के सारे मुसलमानों से सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो आज बड़ी खुशी का मौका है, बहुत से लोग आए बेंगलोर से, तिरुचिरापल्ली से, मैसूर से, सब लोग जो हज़रत टीपू सुल्तान के चाहते हैं, हज़रत नवाब हैदर अली साहब के चाहने वाले हैं, सबके तरफ से आज उर्स बड़े शानदार तरीके से जी जलसे के रूप में जी मुकम्मल हुआ। बेशक। सर, टीपू वक्फ स्टेट के तरक्याती कामों को लेकर आपको क्या कहना चाहिए? बड़ी ये एक्चुअली क्या है, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ का नोटिफाई का एरिया है जी। यहाँ पे सिर्फ हम लोग खिदमत कर सकते हैं एज ए खादिम जी। बाकी जो भी काम करना है वो अपने आर्कोलॉजी सर्वे वाले करते हैं, हम उसके देख रेख के हिसाब से हमारी कमेटी करती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बशीर भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर का 240वां उर्स है और आप तमाम कारपोरेट हज़रात और अब्बास भाई के साथ आए हुए हैं, क्या मैसेज है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। सबसे पहली बात तो हमें आज उरूस है सो पता नहीं था। हम इशा की नमाज़ अदा करने के वास्ते मस्जिद के अंदर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा बुज़ुर्गों का करम हुआ कि आज 240वां उरूस हमारे को ज़ियारत हुई इसकी। इसके साथ साथ दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ खैर के फ़ैसले के लिए दुआ करते हैं बस। नौजवानों को क्या कहेंगे सर? अरे नौजवान आजकल उनका जो मकसद है वो भूल रहे हैं। इस चीज़ के लिए उलमा इकराम हो,
मैसूर के दानिशमंद हो, सियासतदान हो, पूरे मिलकर इसके अंदर काम कर रहे हैं कि नशे के ताल्लुकात से इसके जंग भी चल रही है, इसके साथ जद्दोजहद भी चल रहा है। इंशाअल्लाह आप जानते हैं हमारी सरकार नहीं होने की वजह से सब चीज़ें सामने भी आ रहे हैं, इसके साथ साथ तकलीफ़ें भी उठा रहे हैं। आप तो बेहतर हमारे से ज़्यादा आप सब जानते हैं, चैनल है आपके सबके, आप तो मशहूर है पूरे कर्नाटका के अंदर, अल्लाह बेहतर जानता है, आप सबको जानते हैं। हम कोशिश में लगे हैं कि इस चीज़ों से सब नौजवानों को दूर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारी सरकार की अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ों से फाइट कर कर इन चीज़ों को बंद करवाएंगे। आपका क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर मैसूर, बस यहाँ पर इनका 240 पर 6वां उर्स यहाँ पर आज मुकम्मिल बनाया गया है। बस उसके सिलसिले से मैं, हमारे बशीर साहब और अब्बास साहब और यहाँ के पठन के ज़िम्मेदार यहाँ पर आए हैं बस ज़ियारत करने के लिए। इंशाअल्लाह हमने ज़ियारत भी किया, हमने इशा की नमाज़ भी इस मस्जिद के अंदर ही पढ़ी है। इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इंशाअल्लाह ये न्यूज़ से बहुत सारे लोगों को पता भी चलता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला टिप्पू सुल्तान हैदर अली इनकी सब अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला इन सब लोगों को जितने भी यहाँ पर सो रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब को बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाए। और इसके साथ साथ जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे वालिदैन, जितने भी महरूम अल्लाह के बंदे जो भी गुज़रे हैं, अल्लाह ताला इन सब को मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला सबको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करे। ऐसा ही हर साल ऐसा ही सिलसिला चलता है माशाअल्लाह। नज़ारा तो बहुत अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम यहाँ पर करे हैं, बाकायदा हमने देखे हैं माशाअल्लाह। ऐसे ही परंपरा चलता रहा तो मुकम्मिल बहुत अच्छा लगेगा। 240 पर 6वां उर्स था हैदर अली साहब, हैदर अली बहादुर हैदर अली। हमें एक्चुअली ईशान की नमाज़ पढ़ेंगे को इरादा कर को निकला है जी मैसूर से। बाद आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मालूम पड़े ऐसा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ज़ियारत हुई और अच्छे पैमाने पर हैं कि ज़िम्मेदार सब इस उर्स का इंतज़ाम करे थे। बहुत खुशी हुई, उठ कर ले वो हमें निकल रहे।